ये तस्वीरें वो I think it's a very proud moment in democracy that the Indian National Congress is conducting an election for the post of Congress President. It is happening after a long time, but the fact that there is an open, transparent, credible election happening in any political party, it is a rarity. Nowadays, hardly any political party has the gumption to take such a bold step of having an open election. We have two contestants and almost 9,500 delegates will cast their vote today. And on 19th, you will have a new Congress president. I think it is whoever wins. It is a victory for the democratic thinking within the Congress party. And I think what Mrs. Gandhi has done is actually shown the way to other political parties कि हमारे यहाँ पर चुनाव हम करा रहे हैं, एक पारदर्शी चुनाव, एक ऐसा चुनाव जहाँ कोई भी लड़ सकता है. हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार हैं और 9,500 डेलीगेट्स ने आज अपना मन बनाकर एक व्यक्ति को जिताने का काम करना है. 19 तारीख को मतगणना होगी, यहाँ अध्यक्ष बनेगा और नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ और आपसी जो प्रतिस्पर्धा हुई है, मैं समझता हूँ उससे संगठन को लाभ मिलेगा और दोनों उम्मीदवारों के बीच में जिसको डेलीगेट्स चाहेंगे वो जीतकर आएगा 19 तारीख को और एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस की राजनीति में. लेकिन आने वाले समय की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे कांग्रेसन एकजुट हैं. एक मुस्तैदी से हम लोग आगे लड़ेंगे और भाजपा और उसकी सोच रखने वाले जो सहयोगी दल हैं उनको पराजय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी. Can we expect a complete reformation in the party? Sorry? With this election, can we expect a complete reformation? No, I think it is very clear that the Udaipur Declaration was adopted by the entire top leadership of the Congress party. We will work towards that to rejuvenate the Congress party. Rahul Gandhi ji is doing this Bharat Jodo Yatra, which has got tremendous traction. I think one of the reasons why the BJP feels very uneasy is because of the support that the Bharat Jodo Yatra is gaining. Across 4 states, he's done more than 1,000 kilometers. Some of us had the good fortune to go and join him in the Yatra. All walks of life, all people are coming together. A Yatra that unites people, that fights the divisive forces, जो भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया है, वो बड़ा प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ तमाम देश के लोग इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं और धरातल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं. इससे कांग्रेसजनों का मनोबल बढ़ा है. लेकिन ये यात्रा चुनाव को देखकर नहीं लड़ी जा रही है. चुनाव आते रहेंगे लेकिन ये यात्रा जो निकली है इससे एक बहुत संकेत किया है, सकारात्मक संकेत किया है, लोगों को जोड़ने का, दुर्भावना को ख़त्म करने का, आपसी द्वेष जो पैदा हुआ है उसको समाप्त करने का, लोकतंत्र को, संविधान को, गणतंत्र को मजबूत करने का जो राहुल जी का जो बीड़ा उठाया है उसमें सब लोगों के साथ है. Can we expect the new president can solve the issues in Rajasthan? Sorry? Can we expect the new president can solve the issues in Rajasthan? Whoever becomes new Congress president will have the full support of the entire party. And like I said earlier, this is the internal election. The whole country is watching and with keen interest. That shows that the Congress party has actually lived up to what it says. No other political party in India has ever done that. I don't think the BJP has ever done anything like this. We don't know how Nadda Sahab got elected, who nominated him, who voted for him, and how the process was conducted. The Congress party has shown the way. I hope others will follow. Sir, Hindi. आप तो पूरी नहीं जा रही भाई. देश में इसके नए चीफ की जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौड़ में बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से वोट डाले जा रहे हैं. सचिन पायलट ने एआईसीसी दफ्तर में वोट डाला है. उसके बाद मीडिया से बातचीत की. मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर लगातार वहां से बनी हुई हैं. अदिति, सचिन पायलट को हम सुन रहे थे, लेकिन जो रिएक्शन जयपुर से आई उस एक्शन की रिएक्शन दिल्ली से नहीं आई है. इसका मतलब ये कि वहां तक संदेश पहुंचा नहीं, या इसका मतलब ये कि वहां से संदेश देना ही नहीं? सचिन पायलट से सवाल पूछा गया, जो आप कह रहे हैं वो पूछा गया. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम सब मिलकर चुनाव में काम करें. दूसरा, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार रिपीट नहीं हो पाई. इस बार हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार रिपीट हो और सब मिलकर करें. उनसे फिर पूछा गया कि रगड़ाई को लेकर, युवाओं को लेकर, जल्दबाजी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने फिर कहा कि हम सब मिलकर केवल एक ही उद्देश्य रखते हैं कि हम सरकार दोबारा लाएं. धैर्य रहने की बात कही और आज अपने बयानों में उन्होंने धैर्य रखा, ये साफ नज़र आया. इसकी 2 वजह हो सकती हैं कि पहला, वो जानते हैं कि अगर इस समय किसी भी तरह की कोई बयानबाजी होती है तो वो उनके लिए आगामी जो अगला 1 महीना जो क्रूशल है राजस्थान के लिए, वो ठीक नहीं होगी. लेकिन इससे ये भी समझ आया कि जो रिफ्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ राजस्थान में और अभी उसको सुलझने के लिए या तो कई बैठकों का दौर होगा
या फिर आलाकमान को, जो भी होंगे नए सो कॉल्ड आलाकमान, उनको इस बीच में आना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से उस तरह का बयान आना और सचिन पायलट का उस बयान पे घुमा के जवाब दे देना, या ये कहना कि हमें बस 2023 में सरकार को रिपीट करना है, तो ये लाइनअप से काफ़ी कुछ समझ आता है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहाँ पर नज़र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, नई ऊर्जा की बात हो रही है, दूसरी ओर ये भी साफ है कि राजस्थान का मसले का इंतज़ार हो रहा है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में। इससे क्या कुछ पता चलेगा? पहला तो ये पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तव में एक इंडिपेंडेंट अध्यक्ष हैं। राजस्थान में जो डिसीजन होगा उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी, और ये कि मल्लिकार्जुन ने खुद फैसला लिया है, जो भी फैसला होगा, या अभी भी गांधी परिवार बिहाइंड द कर्टन्स फैसला ले रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंतज़ार है। जैसे ही 19 तारीख को चुनाव हो जाएगा, खुद अशोक गहलोत कल दिल्ली पहुंच रहे हैं, हो सकता है उनके सीनियर नेताओं से मुलाकात हो, और उसके बाद कल वो जब रिजल्ट आएगा तब वो यहाँ मौजूद होंगे, और उसके बाद राजस्थान का जो चैप्टर है, जो अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ, पूरी तरह खुला हुआ नहीं है, कन्फ्यूजन की स्थिति उसमें भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ जो फैसला होगा वो इम्पैक्ट करेगा छत्तीसगढ़ को भी, वो इम्पैक्ट करेगा देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को भी, जो भी फैसला लिया जाता है, और आगामी चुनाव के नतीजों को भी। तो ऐसे में और ये भी पता लगेगा कि क्या इस बार रबर स्टैंप ही बने हैं या इस बार को इंडिपेंडेंट बना है। तो दशा और दिशा राजस्थान एक बार फिर कांग्रेस में तय करने वाली है कि क्या कुछ होगा। बहरहाल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है, दूसरी पार्टियों में मार्गदर्शक की भूमिका में रिटायर्ड लोग आते हैं, यहाँ गांधी परिवार मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, डीजीपी अमर लाठ